Welcome to chapter 14, Statistics. Statistics is something which you are going to learn for the first time. So this is the first year of statistics. 10th में दूसरे साल आएगा and कॉमर्स लिया तो पूरी टेक्स्ट बुक पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा स्टैटिस्टिक्स which will be 2 more years. So 4 years you have to do statistics, and if you take science after 10th standard then one chapter, 9th में एक चैप्टर, 10th में एक चैप्टर और 11th 12th में एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स आएगा. Let's see what is statistics in detail. ये लिस्ट तुमको डराने के लिए नहीं है. This is like a list which you should understand. What are those terms which you need to understand? उसका लिस्ट है. So please pause the video and make a list. Copy all this ताकि वीडियो खत्म होने के बाद तुमको पता चले कि डू यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स. अनग्रुप्ड frequency distribution table, grouped frequency distribution table, continuous class, discontinuous class, class length, upper limit, lower limit, upper boundary point, lower boundary point, central value and frequency. One by one, I'll explain all these terms and keep going back to this so that we can continue to tick and keep a record. But you pause the video and make a list in your notebook. Statistics का invention क्यों हुआ था? To manage data. What is data? Data is information, and today it's the information age. There was a stone age, iron age, bronze age, the age of technology. Today we are living in information age, and information is everything, and information is called data. How do you divide data? Data can be divided into 2 types. ये सब एकदम बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. Either it can be primary data or it can be secondary data. Primary data means data which you have collected. You yourself have collected data, that's primary. And secondary data means data which you have read somewhere or somebody has told you, that's secondary data. तुम्हारे फ्लोर पे, लेट्स अज्यूम कि तुम फ्लैट में रहते हो, तुम्हारे फ्लोर पे कितने फ्लैट्स है तो तुम गिन के बता सकते हो. 3, 4, 2. दैट्स प्राइमरी डेटा. यू योरसेल्फ काउंटेड इट एंड टोल्ड मी. बट इफ आई आस्क तुम्हारी सिटी में कितने लोग हैं या तुम्हारी सिटी में कितने फ्लैट्स है, यू डोंट नो, यू कैन नॉट काउंट, बट यू कैन गूगल इट and whatever answer you get is secondary data for you. तुम्हारी सोसाइटी के कंपाउंड में कितने प्लांट्स है, you can count and tell me. but तुम्हारे एरिया में, सैटेलाइट एरिया में कितने प्लांट्स है, you cannot count. You have to rely on some other source. That's secondary data. टॉपिक ओवर. प्राइमरी खुद कलेक्ट किया है, सेकेंडरी कहीं से पढ़ के या सुन के बताया. Data is of 2 types, quantitative, qualitative. So quantitative data means numbers. How many trees? 100. How many flats? 5. But if I ask a question, what is your favorite color? Color एक number नहीं है, and that's why color is called qualitative data. Quantitative data is where the answers is in numbers. Qualitative data is the answer is in words, like your favorite color. तुम्हारी पूरी सोसाइटी में हर एक मेंबर को पूछो व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट एंड मेक अ लिस्ट. तो लिस्ट कैसा दिखेगा? मैंगो, पपाया, बनाना, 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 मैंगो, 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 वाटरमेलन, लीची, बनाना, पपाया. इसमें कहीं नंबर नहीं आएगा, एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा versus quantitative. Done. Next type, raw, ungrouped, grouped. ये सबसे इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है. रॉ डेटा એટલે છૂટો ડેટા. raw data of, let's say, fruits I'm talking about. So papaya, banana, papaya, mango, orange, चीकू, पपाया,
पपाया, पपाया बहुत फेमस है, मैंगो, चीकू, चीकू, एप्पल, ऑरेंज, एप्पल, बनाना. ऐसा लिस्ट इज कॉल्ड रॉ डेटा. और रॉ डेटा देख के समझ में नहीं आता है कि किसको क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट फेवरेट है, सबसे कम कौन सा फ्रूट पसंद है, एक्सेट्रा. बट दिस रॉ डेटा कैन बी कन्वर्टेड टू अ टेबल, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें तुम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हो. पपाया, बनाना, ऑरेंज, चीकू, मैंगो, एप्पल. पपाया, 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 पपाया. 5 जन को पपाया पसंद है. बनाना, बनाना, 2 जन. ऑरेंज, ऑरेंज, 2 जन. चीकू, 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 3. मैंगो, मैंगो, 2. एप्पल, एप्पल, 2. दिस data is called ungrouped frequency distribution table. We have converted raw data into smartness. 1 सेकेंड में पता चल जाता है सबसे फेवरेट फ्रूट पपाया है, सबसे लीस्ट फेवरेट शायद ऑरेंज, मैंगो या एप्पल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इफ somebody tells you go and buy everybody's favorite fruit, this table is better than raw data. So raw data is the worst form of data. Ungrouped data is बेटर. एंड दूसरा एक स्टाइल होता है ग्रुप्ड डेटा. सोसाइटी में पूछा एज जान के आओ सबकी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. So you went, gathered the data and created this table, जिसमें हर एक की इंडिविजुअल एज नहीं लिखी है, बट तुमने ग्रुप्स बना लिए. 0 से 10 ईयर्स के 3 बच्चे, 10 to 20 ईयर्स के 7 टीनेजर्स, 20 to 30 वाले 15 एंड 30 to 40 वाले 10. एंड दिस इज कॉल्ड ग्रुप डेटा. एनीवेज, वी आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल. सो रॉ, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा वी हैव सीन. Bar graph, histogram, frequency, polygon. Data can also be shown in the form of graphs. Bar graph looks like this. On the graph paper, there are individual bars. And do you know what is this data? This is the data of favorite fruits of people in your society. Papaya, banana, orange, chiku, mango, apple. तो ये 5, फिर बनाना 2, फिर ऑरेंज 2 था, मैंने भूल से कर दिया. बट when this data is represented in a different style, it is called bar graph. Histogram क्या होता है? Histogram is very similar to bar graph. The only difference is the bars are चिपका हुआ, बीच में गैप नहीं होते. छोटे बार, बड़े बार सब चिपक के होते, बार बार लगातार. That's a histogram. और इसके नीचे लिखा होगा पपाया, बनाना, ऑरेंज, चीकू, कैमल, पाइनएप्पल, व्हाटएवर. और यहाँ पे पता चलता है कि हु लाइक्स व्हाट. एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज डॉट 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 डॉट. और वो सारे डॉट्स को तुम ज्वाइन करो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है. एनीवेज, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, बट लिसन टू दिस भाषण ऑफ दिस स्लाइड 2 times सो दैट यू स्टार्ट गेटिंग यूज टू दीज वर्ड्स. प्राइमरी, सेकेंडरी खुद कलेक्ट किया, दूसरों से पता किया.
क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, नंबर्स नो नंबर्स, रॉ अनग्रुप्ड ग्रुप्ड सामने दिख रहा है, बार हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सामने दिख रहा है. What is range? It's a 1 mark question, a very small concept. Range means the difference between highest and lowest observation. The difference between highest and lowest observation. So look at this. Consider the runs scored by Yusuf Pathan in 10 innings. Yusuf Pathan played 10 matches and he scored so many runs in each match. Can you tell me what kind of data is this? This is raw data because it is not arranged in any manner. This is quantitative data because it is made up of numbers. This is secondary data because तुम खुद नहीं गए कलेक्ट करने गए थे, किसी ने बताया है, टेक्स्ट बुक में छपा हुआ है. So it is secondary data. And what is the range? The simple answer है, range is the difference between highest and lowest number. Statistics में range is highest minus lowest. यूसुफ पठान ने हाईएस्ट रन्स किए थे 54 और लोएस्ट रन किए थे 11. So his range is 43. That's the answer. That's all. Find range. What is the data and what kind of data it is? This is raw data. It is quantitative data. It is secondary data. And the data is about marks obtained by 30 students out of 100 students of class 9th. 30 students के मार्क्स लिखे हैं कि उनको एग्जाम में कितने आए. So you can see some are rankers. He got 99 और कुछ बेचारे मेरे जैसे they scored only 15. And how to find the range of this raw data? Range is equal to highest minus lowest, 99 minus 15. जो भी आंसर आया वो 84. But it is very inconvenient to answer questions from this. अगर मैं पूछूं that how many students have scored 90 marks, तो तुमको गिनना पड़ेगा literally. How many students have scored below 50%? So you'll have to search for it and figure it out. Instead, when we convert this raw data into an ungrouped frequency distribution table, it's the best. So raw data is the worst form of representation. The best form is, or one of the better forms is, ungrouped frequency distribution table. So what is the textbook telling you? For a large amount of data, we convert it into groups like 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 26 to 30. And these groups are called classes. So first important word, what is a class? The class is groups of numbers which we have created for our convenience. और जैसे ही क्लास पैदा हुआ तो क्लास के साथ पैदा हुआ क्लास साइज और क्लास विड्थ और क्लास लेंथ. ये सबका मतलब सेम है. Class width, class length, class size. It is the difference between the bigger and the smaller number. What is the class length of this class? 5 minus 1, 4. What is the class width
of this class 10 minus 6 4. What is the class size of this class 15 minus 11 4. So class length, class width, class size सब सेम ही होता है और वो है इन दोनों का डिफरेंस, कोई भी कर लो. बट कहानी में ट्विस्ट है, आंसर 4 नहीं 5 है. 5 minus 1 4, 10 minus 6 4, 15 minus 11 4. But when they ask what is the class length, 5. Why? I'll tell you later because वो अभी नहीं समझ में आएगा. So going back, because raw data is inconvenient, we have converted it to group frequency distribution table, and group frequency distribution table has the first thing called क्लास. और हर क्लास के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं. सो लुक एट दिस डेटा. लेट मी इरेज दिस. वन टू 5 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 7. मतलब 7 स्टूडेंट डब्बे, 5 मार्क आए मैक्सिमम. 26 to 30 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 7. मतलब 7 स्टूडेंट्स रैंकर है और बाकी सब बीच में है. एंड टोटल कितने स्टूडेंट्स है कैसे पता चलेगा? 60. सो दिस मेक्स सो मच सेंस. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच यू कैन आंसर फ्रॉम दिस टेबल. हाउ मेनी आर टॉपर्स, हाउ मेनी आर नॉट टॉपर्स, हाउ मेनी जस्ट पास, हाउ मेनी आर फेल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. That's all thanks to converting raw data to, इसको क्या कहते हैं याद रखना, converting raw data to grouped frequency distribution table. Grouped frequency distribution table. और frequency का मतलब क्या है? ये रहा frequency, the count, number of students. सो कोई भी सम में जब काउंट की बारी आती है, दैट काउंट हैज अ कॉमन वर्ड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. जैसे हमने बनाना, मैंगो, चीकू, पाइनएप्पल, एप्पल फेवरेट फ्रूट पूछा था, तो कितने लोगों का फेवरेट फ्रूट बनाना था? 5. सो फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड 5, काउंट. सो क्लास, क्लास लेंथ, क्लास साइज, क्लास विड्थ, ये सब जार्गन्स हम धीरे धीरे सीख रहे हैं. अब आता है लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, विच इज क्वाइट इजी. लोअर क्लास लिमिट मतलब क्लास का छोटा वाला नंबर. सो 1 to 5 का लोअर क्लास लिमिट इज 1. इट्स रिटन हियर, नॉट रिटन हियर. Upper class limit is the बड़ा number of the class. So upper class limit of 1 to 5 is 5, जो यहाँ लिखा है. Upper class limit of 1 to 5 is 5. Upper class limit of 21 to 25 is 25. Lower class limit of 6 to 10, 6 to 10 का lower class limit मतलब छोटा नंबर 6. Lower class limit of 16 to 20 is 16. So lower class limit, upper class limit. So we have learned a lot of words. Let's go back to our list one time and see कि क्या क्या हो गया. अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने रफ में दिखाया है. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यू सॉ विथ योर ओन आईज. क्लास लेंथ हमने देख लिया, upper class limit and lower class limit, and what is frequency? Frequency is the count. So we have covered a lot of things. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो कुछ डरने का नहीं है. आगे जाते हैं.
नाउ लेट्स मेक, हम लोग हर साल क्लास में every year we do this activity. Now this time unfortunately you are not present in front of me, but I trust you are still studying and I am doing my job well. क्लासरूम में मैं हमेशा पूछता था how many photo frames do you have at home? And then I used to give them 5 minutes to think. ऐसा याद तो होता नहीं है, but this is the question, how many photo frames do you have at home? And then one by one everybody used to answer. There were roughly 20 students in my class every year. तो मेरे को 20 आंसर्स आते थे जो मैं फिलहाल अपने मन से लिख रहा हूँ. सर 3 frames, 5 frames, 4 frames, 3 frames, 5 frames, 7 frames, 1 frame, 0 frame, 6 frame, 3 frame, 5 frame, 11 frame, 13 frame, 15 frame. ये सब कहाँ रहा है भाई? एंटर नहीं मारना पड़ेगा. तो कितने जन ने आंसर दे दिया? 6 + 5 11 + 3 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 20 students have given me 20 answers of how many photo frames do they have at home, and this is called raw data. I have collected it, so it's primary data. It is numbers, so it is quantitative data. And now I am going to convert this data into a frequency distribution table. But which kind of frequency distribution table? Ungrouped frequency distribution table. Ungrouped frequency में this is called class, group में भी this is called class, and this is called frequency, the count. Raw data में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास फ्रेम्स नहीं है, 0, so I write 0. कोई है जिसके पास 1 है, किसी के पास 2 है, नहीं है. You observe here, nobody has 2 frames, then I not write 2. 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 13, 14 नहीं है, 15 and 16. This is number of frames. And here you will write frequency means how many students have this number of frames. तो 0 frames कितने students के पास है? एक ऐसा है, कोई एक बकरा, 0 गिन लिया. 1 फ्रेम वाला 1 जन गिन लिया. 2 फ्रेम किसी के पास नहीं है, 3 फ्रेम 3 फ्रेम 3 फ्रेम 3 people. 4 फ्रेम वाला 1 2 जन. 5 फ्रेम वाला 1 2 3 जन. 6 फ्रेम वाला 1 2. 7 फ्रेम्स वाला 1. 8 फ्रेम्स वाला 1. 9 फ्रेम्स वाला 1. 10 फ्रेम्स वाला 1. 11 फ्रेम्स वाले 2 स्टूडेंट्स. And 13, 15, 16, 1, 1, 1. Think. Raw data जितना बड़ा और confusing था, ये टेबल भी उतना ही बड़ा है. So there is no point
in converting raw data to what we call as ungrouped frequency distribution table. नाम याद रखना. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में खास कुछ मजा आया नहीं, because it is still a very big table. So what I do is I will convert it into a grouped frequency distribution table. See carefully how I do that. Of same raw data. This is always called class. This is telemarks and this is frequency. So अब मुझे ग्रुप्स बनाने हैं, तो मैं 0 to 4, 5 to 8, 9 to 12 and 13 to 16 की ग्रुप्स बनाता हूं. And again from the first number I'll start marking them कि 0 to 4 फ्रेम्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. सो 3 comes here, 5 here, 11, 13, 15, 3, 5, 4, 3, 5, 7, 1, 0, 6, 4, 6, 9, 8, 9, 8, 11, 11, 16, 10, 16, 10. This is called telemarks. Telemarks सिर्फ sticks होती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So if you want to show 18, this is how you can show 18. 5 5 5 plus 3, इसका मतलब 18 होता है. तो इसका मतलब क्या है? 5 plus 2 7, 7 4 3. We have successfully converted raw data into ungrouped frequency distribution table and also into grouped frequency distribution table. Or we also know now what is class. Class is the first column. What is frequency? Frequency is the count. थोड़े से वर्ड सीखे थे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, वो रिवाइज करते हैं. हाँ, इसमें भाई रेंज क्या है? रेंज, डू यू रिमेंबर द वर्ड रेंज? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. हाईएस्ट somebody has 16 frames, lowest somebody has 0 frames, therefore the range is 16. And here in group frequency distribution table, the words which you should understand is क्या हुआ? Class. ये रहे. There are 4 classes, 0 to 4, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16. Now I'm going to tell you something interesting, that these are called
discontinuous class. And why are they called discontinuous? Because 0 to 4 का जो 4 नंबर है वो यहाँ रिपीट होता नहीं है. 5 to 8 का जो 8 है वो नीचे वापस 8 आता नहीं है. 12 की जगह 13 है. When these numbers have a gap, they are called discontinuous classes. इसकी जगह पे कंटिन्यूअस क्लासेस होते तो कैसे दिखते? कहाँ गया? वाई टेक्स्ट कहाँ है? हाँ, कंटिन्यूअस क्लास होते तो ऐसा कुछ दिखता. 0 to 4, 4 to 9, 9 to 13, 13 to 16. This is called continuous classes, and the reason is that 4 is repeated, 9 is repeated, 13 is repeated. But here it is no repetition, therefore they are called discontinuous classes. Apart from that, we know what is lower limit. Lower limit of 0 to 4 is 0. Upper limit of 9 to 12 is 12, etc. We know what are telemarks. Telemarks are 1, 2, 3, 4, 5. We know what is frequency, which is the count. So we have learnt a lot of words, and we have also seen how can data be converted from one style to another. And the predominantly major styles are raw data, ungrouped frequency distribution table, group frequency distribution table. Now, what I am going to show you is how to convert an discontinuous class into continuous class. It's very important. डिसकंटिन्यूअस मतलब 4 5 के बीच में गैप है, 8 9 के बीच में गैप है, 12 13 के बीच में गैप है. आई एम गोइंग टू कन्वर्ट, क्रिएट वन मोर discontinuous class 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. How do you convert discontinuous class to continuous class का प्रोसीजर देखो. वापस आ जा, वापस आ फिर से एक बार. कंप्यूटर भी ना. डिसकंटिन्यूअस क्लास टू कंटिन्यूअस क्लास का प्रोसीजर. 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. What to do is the procedure goes something like this. You have to choose upper limit of the first class. Yes, upsetting. You have to choose upper limit of the first class and lower limit of the second class. बेसिकली जहां गैप है वो दो नंबर्स सिलेक्ट करने, स्टार्टिंग वाले, पीछे वाले नहीं. एंड देन राइट समथिंग लाइक दिस. Upper limit of 0 to 9 is 9. Lower limit of 10 to 19 is 19. Is 10. Hence, how much is the gap? The gap is
10 माइनस 9 1, एक का गैप है दोनों के बीच में। अब वो गैप मुझे नहीं चाहिए। जब वो मैं गैप मिटा दूंगा, द क्लासेस विल बिकम कंटिन्यूअस। व्हाट टू डू इज डिवाइड द गैप बाय 2। गैप बाय 2 मतलब 1/2 और 1/2 मतलब 0.5। सो 9 और 10 का जो गैप है, गैप को आधा कर दो तो 0.5 मिला। एंड आफ्टर डूइंग दिस प्रोसीजर you have to start making your own continuous classes by doing this: 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. Now after writing the original classes, हर एक लोअर लिमिट में -0.5 करोगे और हर एक अपर लिमिट में +0.5। और ये 0.5 कहां से आया? द गैप डिवाइडेड बाय 2। 10 माइनस 0.5, 19 प्लस 0.5, 20 माइनस 0.5, 29 प्लस 0.5, 30 माइनस 0.5, 39 प्लस 0.5, 40 माइनस 0.5, 49 प्लस 0.5। और ये करने के बाद यू विल राइट द रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट? It will be continuous classes. 0 minus 0.5 is minus 0.5. 9 plus 0.5 is 9.5. 10 minus 0.5 is 9.5. 19 plus 0.5 is 19.5. 20 minus 0.5 is 19.5. 29 plus 0.5 is 29.5. ये हो गए क्लासेस कंटिन्यूअस। 9.5 मैच, 19.5 मैच, 29.5 मैच, 39.5 मैच। That's the entire procedure of converting discontinuous classes to continuous classes. तो मैं ये discontinuous बाजू में लेके जा रहा हूँ so that you can compare next to each other. उत्तरी ये गैप था, वो गैप चला गया, discontinuous became continuous. That brings me to a very important word. That very important word is, ये related गैप करो, 4 words. लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट। ये बाउंड्री पॉइंट पहली बार आ रहा है। व्हेन क्लासेस आर डिसकंटिन्यूअस देन इट इज कॉल्ड क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, lower class limit, upper class limit. But when you convert them to continuous, तो उसको क्लास लिमिट की जगह पे बाउंड्री पॉइंट बुलाते हैं,
This is lower boundary point, upper boundary point, lower boundary point, upper boundary point, and so on. तो ये सब छोटे छोटे नाम है. I am going back to our first slide of the list of names which you have to remember. अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हमने, रॉ डेटा में से पूरा कन्वर्ट किया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया. ग्रुप में पहले डिसकंटिन्यूअस क्लासेस थे, फिर उसको कंटिन्यूअस बनाना सीखा. वी नो व्हाट इज क्लास लेंथ. क्लास लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास साइज. क्लास साइज इज ऑल्सो नोन एज क्लास विड्थ, विच इज द गैप बिटवीन द टू लिमिट्स. अपर लिमिट लोअर लिमिट देखा, and we also finally saw upper boundary point and lower boundary point. This is when the data or when the class is discontinuous, and boundary points are when the classes are continuous. Central value of the class बाद में देख लेंगे. Let's go ahead. ये देखो, this is an example of continuous class. 40.5, 40.5, 45.5, 45.5. और जब तक ये मैच हो रहा है, इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस. एंड कंटिन्यूअस क्लासेस में it's called lower boundary point and upper boundary point, not lower limit, upper limit. That brings us to the first exercise, exercise 14.1, जिसमें सच पूछो तो कुछ है ही नहीं. Give 5 examples of data you can collect from your day to day life. कुछ भी लिखो, और ये पूछेंगे ही नहीं एग्जाम में, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं. The data I can collect from day to day life is number of cars in each family of 40 flats of my society. मेरी सोसाइटी में 40 फ्लैट है. 40 फ्लैट में कितनी कार है, किसके पास कितनी कार है, वो मैं डेटा कलेक्ट कर सकता हूं. फेवरेट फ्रूट्स ऑफ माई क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स. 20 स्टूडेंट को हर एक को अपना अपना फेवरेट फ्रूट पूछ के लिख सकता हूं. Number of photo frames on 4 flats on my floor. मेरे फ्लोर पे 4 फ्लैट है, चारों फ्लैट में जाके नंबर ऑफ फोटो फ्रेम्स मैं गिन सकता हूं. कलर ऑफ द स्कूटर ऑफ 40 फ्लैट्स ऑफ माई सोसाइटी. तो हर एक के पास 2 व्हीलर है, उसका कलर मैं नोट कर सकता हूं. एंड आई कैन से नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स फ्रॉम अहमदाबाद फॉर लास्ट वीक, डेली बेसिस पे. सो मंडे टू मंडे या संडे टू संडे का डेटा कलेक्ट कर सकता हूं. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डेटा विच वी कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ. द सेकेंड क्वेश्चन इज क्लासिफाई दिस डेटा एज प्राइमरी और सेकेंडरी. Primary data is the data which you collected yourself. This is primary. Cars पूछ सकते हो, देख सकते हो, गिन सकते हो. This is primary. क्लासरूम के अंदर डिस्कस करके पूछ के. फोटो फ्रेम कैन बी प्राइमरी, घर घर जाके फोटो फ्रेम गिन सकते हो. कलर ऑफ स्कूटर कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी, तुम खुद कर सकते हो. बट कोरोना पेशेंट्स का हिसाब किताब तुम्हें क्या मालूम. हैव यू गॉन टू द हॉस्पिटल टू किल? अरे किल क्या रे बे, count corona patients? No. This is called secondary data because we rely on government information for corona patients in Ahmedabad. Primary and secondary data exercise हो गई खत्म. 14.2 exercise is the last thing which we will cover today. Blood group of 30 students of class 8th are recorded as follows. 8th standard के 30 स्टूडेंट को अपना ब्लड ग्रुप पूछा, विच इज कैटेगराइज्ड एज A, B, O and AB. द क्वेश्चन इज
represent this data. Which data? This data, which is raw data, in the form of frequency distribution, and then answer some questions. तो क्लास क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, ए बी, चार ये, तो चार लिखो एंड स्टार्ट काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 9 students have blood group A. B, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 6 students have blood group B. ओ जाने जाना, ओ चारों है. 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 11. एंड लास्ट बचा वो ए बी. 1 2 3. We have converted raw data into ungrouped frequency distribution table. और सवाल है टेक्स्ट बुक का, which is rarest blood group? सबसे रेयर मतलब सबसे कम ब्लड ग्रुप है ए बी. सम ओवर. मार्क्स विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर्स विच हैव टू बी करेक्ट. Distance in kilometer of 40 engineering students from their residence to their place of work were given. Students नहीं, engineers. 40 इंजीनियर को पूछा आप घर से कितना दूर रहते, ऑफिस से कितना दूर रहते हो, और बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन प्लेस वेयर दे लिव एंड प्लेस वेयर दे वर्क. तो ऑफिस और घर के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में लिखा हुआ है. 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इतना दूर रहता है. गांधीनगर जाता होगा ना बेचारा. सो 40 स्टूडेंट्स और 40 engineers kilometers are given, and the question is construct a grouped frequency distribution table. Group मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, etc. where the first interval is 0 to 5. 5 not included. Question थोड़ा ढक गया है. The first interval, class interval is 0 to 5, जिसमें 5 included नहीं है. का मतलब नीचे 5 वापस आएगा. So 5 is included in second class. 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. What kind of class are we writing? Think. Is it continuous or discontinuous? It is continuous. और continuous में भी कहां तक कंटिन्यू करना है, तो लिखते ही रहेंगे, रात हो जाएगी हम लिखते रहेंगे 2000, 5000, 10000. कहां स्टॉप करना है वो कौन बताएगा? हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू. लोएस्ट वैल्यू ढूंढो, आंखें फोड़ो, 2 किलोमीटर, and highest value ढूंढो 32 kilometer. 2 should fit inside, it will fit here sir, and 32 should fit inside, it will fit here. मतलब शायद हमने एक्स्ट्रा क्लास लिख दिया है जिसको हम यूज नहीं करेंगे और लिखेंगे भी. So classes are ready, where lowest value is fitting here and highest value is fitting here. Now we start our activity of filling the table. ये A B काउंट करने जितना इजी नहीं है. Therefore, see what strategy we are using. 5, ये 5 तो दोनों में है,
क्या करेंगे? नीचे वाला क्लास, ये बाय हार्ट करो। व्हेन देयर इज अ क्लैश के फाइव को कहां इन्वॉल्व करे? नीचे वाले में। 5 3 3 10 दोनों में नीचे वाला, 20 दोनों में नीचे वाला, 25 दोनों में नीचे वाला, 11 10 के बाद आता है इस ग्रुप में, 13 7 12 31 19। मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हें करना है। कोई भी शॉर्टकट ट्राई किया, मैं ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, ने गलत हो जाएगा। याद रखना, सिली मिस्टेक हो गई, बातें करना मत। मैथ्स करते करते बातें कम, काम ज्यादा। तो बातें नहीं, फुल कंसंट्रेशन के साथ जैसे मैं टैली मार्क्स डाल रहा हूं वैसे तुम भी डालते जाओ। दिस इज हार्ड वर्क एंड डोंट यूज एनी स्मार्ट वर्क। तो आओ बच्चों, थोड़ा सा मजा करते हैं। 7 7 9 9 7 7 8 8 3 3 5 मजा आया? Therefore, the frequency is 5, 11, 11, 8, 1, 1, 2 एंड ये टोटल 40 होना चाहिए बिकॉज देर वर 40 पीपल जिसका हमने डेटा बनाया है। 5 6 7 + 8 15 16 17 18 19 1 2 3 39 5 6 7 + 8 15 16 17 18 19. See, there is a mistake. So there is something which I have forgotten and you will not do this mistake. What will teacher check? Teacher will check the numbers of frequency. They should exactly match and the total should be 40. And the worst part, you cannot catch your own mistake. तुम्हें जिंदगी में पता नहीं चलेगा कि इतने सारे रमण भमण में कहाँ मिस्टेक हो गई। इसलिए शांति से करना, एकदम शांति से, और कोई ट्रिक मत लेना जो मैं कर रहा हूं। दैट्स हाउ यू क्रिएट टेबल्स। पूरा एक्सरसाइज टेबल बनाना है। नाउ आई विल गो फास्ट, आई विल नॉट क्रिएट फुल टेबल्स, दैट्स योर होमवर्क। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 days वॉज गिवन। तो सिटी कौन सी? अहमदाबाद। अहमदाबाद का क्या? ह्यूमिडिटी। और कितने दिन का? 30 दिन का। तो 30 days ह्यूमिडिटी डेटा इज गिवन। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ, अब ये विथ क्या बोल रहे हैं, इसको हटाओ। कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 etc. 84 86 86 88. ओके, विच मंथ और सीजन एंड व्हाट इज द रेंज? देखो रेंज पूछा है, तो लेट्स फाइंड द रेंज फर्स्ट बिकॉज इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। रेंज इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब आके फोड़ो, लो तुम्हारे लिए खास, इसको थोड़ा एनलार्ज करते हैं। हाईएस्ट ढूंढो। 98.6, 98.6 से ज्यादा, 99.2, 99.2 से ज्यादा नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। Therefore, the highest observation is 99.2% humidity and lowest is
86, 86 से कम 84, 84 से कम मुझे दिख नहीं रहा है। ये हो गया लोएस्ट, और इसका डिफरेंस इज द रेंज। सो रेंज इज डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट। रेंज इज इक्वल टू 99.2 माइनस 84.9, जो भी आता है वो कर लेना। 0.1, 85, 14.3, 1 मार्क मिलेगा रेंज ढूंढने का, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, रेंज हो गया। अब कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमारा टेबल लेके आते हैं। कहाँ गया? आजा भाई, तेरा टाइम आ गया। एंड आई एम डिलीटिंग ऑल दिस क्लटर, बट बिफोर आई डिलीट, याद रखना 84 टू 86 एंड 86 टू 88। टेबल आ चुका है। Good enough. I hope the numbers are visible. 84 to 86. But do you think it is correct starting point? Lowest fit होना चाहिए। तो 84 to 86 लिखने से पहले सोच लेना कि lowest fit होता है 84.9। हाँ, and then continuous ही बनाने का, हमेशा continuous। 86 to 88, 88 टू 90, +2 करते जाओ। 92 टू 94। कहाँ स्टॉप होना है? वहां स्टॉप होना है जहां सबसे बड़ा 99.2 फिट हो जाए। 98 टू 100 एंड स्टॉप। ये गलती कर दी। 96 शुड गेट रिपीटेड हियर। एक क्लास खा गया, भूख लगी है, लंच बाकी है, कितने बजे? 96 टू 98 एंड 98 टू 100. After preparing, you will start the procedure of tally marks. 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, 86.5, 95.3, 92.9, 96.3, 94.2, 95.1। टक 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 करते जाओ। Your tally table will be ready. फिर tally marks गिन के frequency डाल के total कर लेंगे। That's how you convert raw data into frequency distribution table. Sum number 2, height of 50 students is given in centimeter. By the way, लास्ट सम में टेबल खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि तुमको क्या लगता है कौन सी सीजन चल रही है। सो योर आंसर विल बी रेनी सीजन, बिकॉज द एवरेज ह्यूमिडिटी लेवल्स आर क्वाइट हाई, और रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी हाई होती है। सो whenever you finish a sum, remember to answer the questions. Now in this case, first thing, find the smallest observation. I can see 150 somewhere, और 150 से कम 149 कहीं दिख नहीं रहा है। तो 150 is the smallest observation, और बिगेस्ट में मुझे 173 मिला। 173 से बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है। शांति से ढूंढो, टेक योर टाइम। इट्स बेटर टू टेक मोर टाइम rather than do it wrong. तो ये हाईएस्ट लोएस्ट मिल गया। अब क्लास लिखने से पहले सोच लो, 160 165 में 150 फिट होगा? नहीं। therefore क्लास दिया हुआ है विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, बट वो लोग नहीं बताएंगे कि कहां से शुरू करना है। तुम्हें खुद दिमाग लगाना है। 150 to 155, 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 150 to 1
दैट्स द फर्स्ट क्लास, जिसमें 150 आ जाएगा. 155 प्लस 5 160, 160 प्लस 5 165. देखो आ गया 160 टू 165. और कहाँ तक जाओगे? 173 फिट होना चाहिए. 165 टू 170, 170 टू 175 हो गया 173 फिट. 5 classes, and then tally marks, then the frequency and the total. Make sure the total is 50. और ये जो क्वेश्चन है, what can you conclude about their heights from the table? You can write whatever conclusion you feel like. We can conclude that there are only 3 students who are lowest height. We can conclude that there are 5 students who are highest height. ऐसा कुछ भी, जो भी डेटा आया उसके बेसिस पे 2 सेंटेंस लिख देने के. सिटी में पोल्यूशन होता है. पोल्यूशन इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन. तो कौन सी सिटी? अहमदाबाद सिटी. कितने दिन? 30 डेज. सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल का पीपीएम मेजर किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये स्टैटिस्टिक्स है. इट्स अबाउट नंबर्स, नॉट अबाउट द थीम. दिस थीम इज यूजलेस. सो सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन का मेजरमेंट का 30 डे का डेटा दिया है. मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फर्स्ट थिंग, फाइंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 0.06, 0.03 लग रहा है. उससे कम 0.01 स्मॉलेस्ट नंबर. एंड हाईएस्ट नंबर 0.12, 22. 22 से बड़ा नंबर ढूंढो. नहीं है. हाईएस्ट लोएस्ट मिल गया, रेंज मिल जाएगी. एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग टेबल बेस्ड ऑन क्लास विच दे हैव गिवन. व्हाट is the class given? The class given is 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08. So 0.00, 0.04. Pardon my, I think I can manage better handwriting if I use a thin marker. 0.00, 0.04, 0.04, 0.08, 0.08, 0.12. प्लस 4 करना है. सॉरी अबाउट माई मोस्ट पथेटिक हैंडराइटिंग. 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20. कहाँ स्टॉप करेंगे? जब तक सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं आ जाता. आ गया 0.22, 0.24 और 0.20 के बीच में आ गया. फिर टैली मार्क्स, टोटल, आंसर द क्वेश्चंस एंड डन. Three coins were tossed 30 times. Each time the number of heads were noted down as follows. This is very easy. 3 कॉइन टॉस करोगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी हेड्स ना आए. 0 heads, 1 head, 2 heads and 3 heads. 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1 करके सम खत्म कर देना है. वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो. मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिजिट 0 to 9. पाई में, पाई की रियल वैल्यू में डॉट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स है और उसमें से पहले 50 डिजिट्स यहां पे दिए हुए हैं. दीज आर फर्स्ट 50 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. You have to find out the frequency of each digit. So यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9.
0 0 2 बार 1 1 1 1 1 अंधे हो जाओगे एक दिन 4 बार. This is how you do it. Please do it and finish the homework. 30 children were asked about number of hours they watch TV. बच्चों को पूछा तुम कितने घंटे टीवी देखते हो. चुन्नू बोला 1 घंटा, मुन्नू बोला 10 घंटा. लोएस्ट नंबर 1, हाईएस्ट नंबर 15. 17 घंटे टीवी, मर जाएगा ये. सो रेंज मिल जाएगी. मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें 5 to 10 होना चाहिए. और फिर जो सवाल पूछा उसका जवाब तुम दे सकते हो. इट्स वेरी इजी. 5 to 10 में 1 नहीं आता, तो 0 to 5 में 1 आएगा. फिर 5 to 10, 10 to 15, बट 17 फिट करना है, सो लास्ट विल बी 15 to 20. And then you fill in the table, find the frequency and answer this question. How many children are watching for 15 or more hours? मैं एक फेक सम बनाता हूं और फिर आंसर करता हूं. दिस इज अ फेक सम. 5 7 10 3. क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स. 15 या 15 से ज्यादा घंटे के लिए, मतलब ये ग्रुप 15 to 20 hours. The answer is 3 students. So whatever your answer is, you can write that after filling the table. जात मेहनत जिंदाबाद. कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज और उसकी लाइफ कितने साल बैटरी चली. किसी की 2.6 years, किसी की 3 years. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2 to 2.5 and again find the lowest number first. 2.6, 2.5, 2.3, 2.2 and I think this is the lowest. और highest में 4.2, 4.6, 4.6 is the highest. और ये highest और lowest fit हो जाए वैसे 0.5 के जंपिंग में, मतलब 2 to 2.5. इसमें 2.2 आ जाएगा. 2.5 to 3, 3 to 3.5, 3.5 to 4, अरे रे, and 4 to 4.5. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन फिट होगा 4.6 नहीं, 4.5 to 5. टेबल रेडी. फिल इन द डेटा, फिनिश द सम. आज के लिए इतना ही काफी है. थैंक यू सो मच. फिनिश योर होमवर्क एंड ईमेल इट. एंड आई वांट टू शो यू समथिंग. जब तुम ईमेल करते हो तो व्हाट डू आई सी? इट्स अ वेरी cumbersome process, so please cooperate. And the only cooperation I am asking you with regards to homework email is कि तुम सब्जेक्ट में अपना नाम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड और टॉपिक लिखो. लुक एट दिस इनबॉक्स. सो दानवी माय स्टूडेंट. दिशा, तिथि, याग्निक, सिमरन. जगदीश भाई पटेल मेरे स्टूडेंट नहीं है. जगदीश भाई पटेल किसी के फादर है. तो व्हाट इज नेसेसरी, सी हियर. जगदीश भाई पटेल के बारे में क्या लिखा है, कहा गया 10th हिमानी 24 कंस्ट्रक्शन. दैट्स ऑल माय रिक्वेस्ट. सब्जेक्ट के अंदर लिखो स्टैंडर्ड, नेम, रोल नंबर एंड टॉपिक. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. एंड यू सी मोस्ट ऑफ यू आर फॉलोइंग इट. श्रेय 933. ए देखो कैम स्कैनर. लुक एट दीज टू ईमेल्स. आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबडी. संजय शाह इज नॉट माय स्टूडेंट, ही इज सम फादर. कैम स्कैनर मतलब मुझे ना रोल नंबर ना नाम कुछ पता चलेगा. देयरफॉर आई हैव टू ओपन दिस ईमेल. वेरी गुड. ये लिखा होगा तो भी चलेगा. 10th स्टैंडर्ड सृष्टि शाह, रोल नंबर 30, लेसन 5 का पार्ट 4 का होमवर्क. So all I am requesting is please write information either in the subject or inside the email. धन्यवाद.